ممبر رسول پر تشریف فرما مشائخ اعظام علماء ذوی الاحتشام حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ احمدک یا اللہ واصلی واسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ محبت کے ساتھ نبی علیہ نبی پر درود و سلام کا ہدیہ بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد، اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ مختصر وقت میں اپنی بات کو آپ تک رکھ کر انشاءاللہ گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ آپ نے ابھی ماضی قریب میں مرکزی دارالافتاء کے فتوے کے متعلق بہت سارے شور و شغب اور واویلے کو سنا ہوگا، سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا، مگر آئیے میں بتاؤں جو سرکار تاج شریعت کا موقف ہے وہ موقف اوپر تک جائیں، وہی موقف اعلیٰ حضرت کا ہے، وہی موقف تابعین کا ہے، وہی موقف ائمہ مجتہدین کا ہے۔ تصویر سازی، فوٹو کھینچنا کھچوانا، تصویر سازی یہ پہلے بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے اور قیامت تک یہ حرام ہی رہے گی۔ میں ان کی تائید چاہتا ہوں، اور قرآن کی آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا اور آخرت میں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اٹھائیے ذرا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تفسیر، جس کے راوی حضرت اکرمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ایذا دینے والوں سے مراد کون ہے؟ کہا ہم الذین یصنعون الصور، اس سے مراد وہ ہے جو تصویریں کھینچتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، تصویر سازی کیا کرتے ہیں۔ اب آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بیوی، میری اور آپ کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی حدیث کو امام بخاری نے بھی لیا ہے، امام مسلم نے بھی لیا ہے، مگر الفاظ امام مسلم کے ہیں۔ فرماتی ہے دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقد سترت صحبة لی بقرام فیہ تماثیل فلما رآہ حتکہ وتلفن وجہہ وقال یا عائشة اشد الناس عذابا عند اللہ تبارک وتعالی یوم القیامة الذين يضاهون بخلق الله تبارك وتعالى فقطعناه فجعلنا منه وسادة او وسادتين۔ ام المومنین فرماتی ہے، مختلف حدیث کے الفاظ ہے، سرکار نے ایک دن سفر سے تشریف لائے، ام المومنین فرماتی ہے ایک دن آقا میرے پاس آئے تو آقا کریم علیہ السلام کے آنے سے پہلے میں نے اپنی طاق کو ایک پردے سے بند کیا تھا، اس میں تصویریں تھی، اس میں تصویر تھی۔ آقا کریم علیہ السلام کی جب نظر پڑی میرے نبی نے اس کو پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، جو ناگواری کے آثار تھے۔ سرکار نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے عائشہ تمہیں پتا ہے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ سخت عذاب کن کو ہوگا؟ ان کو ہوگا جو اللہ کی تخلیق جیسی، اللہ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں۔ اللہ خالق ہے، اللہ تصویر بنانے والا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ رب العزت کی اس تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں۔ فرمایا ان کو قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام کی بیوی ہماری ماں ام المومنین فرماتی ہے جب میں نے سرکار کی ناراضگی کو دیکھا فقطعناہ، میں نے اس پردے کو کاٹ دیا اور کاٹنے کے بعد اس کے دو تکیے بنا لیے، صورت کو مس کر دیا گیا ہے۔ اب آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری حدیث ہیں جن سے تصویر کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ آج ایک واویلا مچایا جا رہا ہے، حرمت کا مسئلہ، تصویر کی حرمت کا مسئلہ مختلف بھی ہے،
फला ने इख्तिलाफ कर दिया है, फला ने इख्तिलाफ कर दिया है। मैं डंकी की चोट पर अपने इन बुजुर्गों के कदमों को चूम कर कहता हूँ, तस्वीर का मसला न कभी मुख्तलफ भी था और न आज है। तुम्हारा सहनो दिमाग इख्तिलाफ पैदा करके इस मसले की हुर्मत को आसानी में बदल नहीं सकता, जवाज की तरफ ले जा नहीं सकता जो ताजुश शरीया ने पैगाम दिया है और उनसे पहले जो आला हजरत ने अताल कदीर फी हुक्म तस्वीर में दिया है वही मौकिफ हक है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको मानते हैं। अब आइए जरा आगे बढ़ते हैं। बात ये चल रही है कि ये मसला मुख्तलफ ही है। हमने कहा कभी मुख्तलफ ही रहा नहीं और ना है। कुछ लोगों ने इसका जवाब साबित करने के लिए ये कह दिया तस्वीर हमारे नजदीक हराम तो है मगर जरूरत का तहक्कुक हो गया है। मैंने कहा अपनी तहकीक को अपने पास रखो, इसलिए कि तुम्हारी तहकीक में हमेशा इख्तिलाफ होता रहता है। कभी तुम मदनी चैनल के बारे में कहते हो, उसको देखना निहायत मुस्तहसन है। मैं पूछना चाहता हूँ इस्तेहसान की हद तो फर्ज पर जाकर रुकती है, तो क्या तुम्हारे नजदीक मदनी चैनल का देखना ये फर्ज हो गया? इसको फर्ज के दर्जे में रखते हो। हम ऐसों की तहकीक नहीं मानते, हम तहकीक ऐसे की मानते हैं जिसकी तहकीक में खुलूस भी होता है, जिसकी तहकीक में तकवा भी होता है, जिसकी तहकीक में सलाह भी होती है, जिसकी तहकीक में फलाह भी होती है। हम उस ताजुश शरीया की तहकीक को सामने रख के आगे चल रहे हैं जो मर्तबे इमाम आजम है। वो इमाम आजम जिसका आलम ये था जब कोई मसला हल नहीं होता था 40 बार कुरान पाक के खत्मात करने के बाद जब मसला लेकर बैठते थे अल्लाह ताला मसले का हल फरमा दिया करता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो फरमाइएगा, मैं दो इस्तिदलाल की बात करता हूं। दूसरा इस्तिदलाल ये किया गया जो कल तक टीवी और मूवी के बारे में कहते थे झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी, गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, टीवी के खिलाफ जंग जारी रहेगी, मूवी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मैंने कहा भैया कभी ये भी तो कह दो देवबंदियों के खिलाफ जंग जारी रहेगी, कभी ये भी तो कह दो बदअकीदा लोगों के खिलाफ जंग जारी रहेगी, कभी चैनलों पर बैठकर ये भी कह दो अशरफ अली के खिलाफ जंग जारी रहेगी, इस्माइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ये कब बोलोगे? ये मसलहतें और हिकमतें मत निकालो। अगर तुम्हारे यहाँ नाम लेना आयब है तो बताओ आला हजरत ने 250 किताबें बदमज़हबा में लिखी है और नाम ले लेकर के रद्द किया है, तो तुम्हारी मसलहत सही है या आला हजरत की मसलहत सही है? तवज्जो फरमाइएगा, आगे देखें। इस्तेदलाल किया, किताब का नाम है टीवी मूवी। कल तक जो घरों से टीवियां निकालते थे आज वो कह रहे हैं 99 बदकिस्मती से 99% लोग टीवी में मुब्तला हैं। ये उनके जुमले हैं और ये इस्तेदलाल देखिए कितना मजबूत है। तस्वीर की हुर्मत के सिलसिले में हदीस एक जानिब जनाब तो फिर न जाने दर्जा इत्तिहाद पर फाइज है किस पर है मैं नहीं जानता, मगर कह रहे हैं 99% लोग इसमें आ गए हैं और आने के बाद कहते हैं 1% बचे भी हैं तो वो भी किसी तरीके से दूसरों के यहाँ जाकर के देख लेते हैं और अगर इतना ही नहीं तो क्या अखबार को देख लिया करते हैं। लिहाजा अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे। अब आइए जरा फतावे रज़विया की 26वीं जिल्द के बारे में मैं उलमा की खास तवज्जो चाहता हूँ। 26वीं जिल्द है फतावे रज़विया की, उसका एक हवाला पेश कर रहा हूं। तासीम उम्मत का मसला अलग है, असबाब सित्ता का मसला अलग है। मेरे इमाम से ज्यादा असबाब सित्ता को समझने वाला कोई नहीं है, मगर फतावे रज़विया में आला हजरत फरमाते हैं मज़ामीर के बारे में कि मज़ामीर हराम है और हराम ही रहेगा। और फरमाया लोगों के जिसको आप म्यूजिक बोल सकते हैं फरमाया हराम है, हराम ही रहेगा। और लोगों के गुनाह में मुब्तला हो जाने से कोई गुनाह जायज नहीं हो जाता। ये आला हजरत के जुमले हैं। फरमाया उनके मुब्तला होने से कोई गुनाह जायज नहीं हो जाता कि अगर गुनाह को जायज करार दे दोगे तो फिर शरीयत को जाहिल और फासिकों के हाथ में मंसूख कर देना लाजिम आएगा। हमें ऐसे जाहिलों की तहकीक नहीं चाहिए। और आगे बढ़ो। हाँ, एक निस्बत की बात आती है। हाँ, बहुत पहले इख्तिलाफ चला था, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं निस्बतों का एहतराम करता हूँ, उनकी निस्बत हमारे सलाखों पर है, इसलिए कि निस्बतों से प्यार करने का मिजाज भी बरेली शरीफ ने हमें दिया है। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मगर याद रखिएगा हजरत इमाम औज़ाई और इमाम आजम का मुनाजरा हो रहा है,
गुफ्तगू हो रही है, मक्का शरीफ में दोनों जमा है। एक कहते हैं रफ़े यदैन क्यों नहीं करता, दूसरे कहते हैं आप क्यों करते हैं। इमाम औज़ाई ने कहा हदीस है, हदीस की सनद बयान की, हमसे हदीस बयान की ज़ुहरी ने, वो रिवायत करते हैं सालिम से, वो रिवायत करते हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर से। इमाम आज़म ने कहा मेरे नजदीक कोई हदीस सही है ही नहीं, तो रफ़े यदैन करूं कैसे। जरा पॉइंट पर आ रहा हूं, आम दम बरसरे मतलब पर आप जरा खास तौर से तवज्जो दीजिएगा। इमाम आज़म भी अब सनद पेश कर रहे हैं। फरमाया हमारे नजदीक रफ़े यदैन ना करने पर दलील है। कहा मुझसे हदीस बयान की हजरत हम्माद ने, वो रिवायत करते हजरत इब्राहिम नखई से, वो रिवायत करते अलकमा असवद से, वो रिवायत करते अब्दुल्ला इब्ने मसूद से। अब यहां तक बात हो गई, इमाम औज़ाई चलान में आए, कहा देखो मैं तुम्हारे सामने ज़ुहरी की, अब्दुल्ला इब्ने उमर और सालिम की रिवायत सनद पेश कर रहा हूं और तुम उनकी बात करते हो। तो इमाम आज़म ने जवाब का दिया था निस्बतें हमारे सर का ताज है। अरे हम मस्जिदों में अपने पैर की चप्पल लेकर इसलिए नहीं जाते, उसको अल्लाह के घर से निस्बत हो गई है। हम सादात से इसलिए भी प्यार करते हैं और इसीलिए प्यार करते हैं कि उनको निस्बत मेरे मुस्तफा के दर से है, हमें निस्बतों का एहतराम है। मगर आइए इमाम आज़म ने क्या कहा, आपने फरमाया हजरत हम्माद जो है आपके इमाम ज़ुहरी से बड़े फकीह है, हजरत इब्राहिम जो है हजरत सालिम से बड़े फकीह है, हजरत अलकमा और असवद जो है ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से बड़े फकीह है। फरमाया लैसा बिदून इब्ने उमर फी, फरमाया फिक्र के मामले में उनसे कम नहीं है। एक कहा आपने आगे बढ़कर ये भी कहा, ये अलग बात है कि वो सहाबी रसूल है, उनकी निस्बतों का एहतराम है, मगर जहां फिक्र की बात आएगी और कहा अब्दुल्ला हुआ अब्दुल्ला, अब्दुल्ला तो अब्दुल्ला है, उनका आलम यह है कि ना उनकी तरह अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने मसूद की तरह न फिक्र में है, न किरात में है, न दीगर चीजों में है। और सोहबत का आलम यह है कि बचपन से शहादत सहाबियत रसूल उनको हासिल है। बात मुकम्मल हो गई। इस मुनाजरे में हमें एक सहन दिया है कि तहकीक अपनी जगह होती है, निस्बत अपनी जगह होती है। अब आइए जरा मैं आपसे अर्ज करता चलूं, सरकार ताजुश शरिया ने, जिन लोगों ने यह कयास किया था कि आईने पर कयास करो, पानी पर कयास करो, सरकार ताजुश शरिया ने सवालात कायम किए हैं। उन सवालात में सिर्फ 3 सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, बात समझ में आ जाएगी। सरकार ताजुश शरिया कहते हैं कि जो इसको अक्से आईना पर कयास करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, उसके पीछे नमाज पढ़ने वाले के पीछे दीवार में तस्वीर लगी है, अब उस तस्वीर पे पर्दा भी नहीं है और नमाज पढ़ने वाले के सामने शीशा लगा है, आईना लगा है, ये पीछे की तस्वीर शीशे में छप रही है, नजर आ रही है। अब बताइए नमाज पढ़ने वाली की नमाज मकरूह तहरीमी होगी कि नहीं? समझे मेरी बात को आप बताइए, पीछे लगी है मगर सामने नजर आ रही है, तो हो गई सामने। ताजुश शरिया कहते हैं अब बताए अगर मकरूह तहरीमी है नमाज तो वही मान लिया जो हमने कहा। एक बात और आपने फरमाई, टीवी के ताल्लुक से आपने कहा कि साहब उसमें वो अक्से आईना पर कयास करके हम उसको जायज करार दे रहे हैं। तो सरकार ताजुश शरिया कहते हैं एक आदमी नमाज पढ़ने खड़ा हुआ, टीवी चालू की, सामने उसने मान लीजिए यही चैनल लगा लिया बप्पा वाला, और लगाने के बाद उसने खोलने के बाद अब नियत बांधी, सामने वो तस्वीर है। अब बताइए नमाज मकरूह तहरीमी होगी कि नहीं? तो इसका मतलब यह है कि अक्से आईना वाला कयास, निस्बतें अपनी जगह, ये जुमला दोनों लेकर के जाना। कल कोई मेरे ऊपर ये गुबार और इस तरह का इतराज या कीचड़ उछालने की कोशिश ना करे। हम निस्बतों से प्यार करते हैं, मगर जब तहकीक की बात आएगी तो तहकीक की बुनियाद पर जिसके दलाइल मजबूत होते हैं बात उसी की मानी जाती है। सरकार ताजुश शरिया के दलाइल मजबूत है। आला हजरत ने अताल कबीर में मसले को वाज़ेह किया और फरमाया शक नहीं कि तस्वीर हैवानी मुजस्सम हो, खामुशत्ता कपड़े पर हो, दीवार पर हो, दस्ती हो या अक्सी, इसी माना में दाखिल है, यानी वो हराम है, यानी वो हराम है। और जब हराम है तो याद रखना सरकार ताजुश शरिया के फतवे के मुताबिक जो मरकजी दारुल इफ्ता से फतवा दिया गया वो गलत नहीं सही था, और हम भी इस बात के कायल हैं। और आप ताजुश शरिया से प्यार करते हैं, उनकी निस्बतों का अदब व एहतराम रखते हैं, तो यहाँ से पैगाम लेकर के जाइएगा। हम उसी मौके पर है कि टीवी मौली के खिलाफ हमारी जंग है और जंग रहेगी, और इंशाअल्लाह रहमान इस तरीके से आखिरत को संवारते चले जाएंगे। काश मेरे ताजुश शरिया के फतवे पर सबने अमल किया होता तो आज जमाने ने इसको ये जमाना ना दिखाया होता। इस बज़्म से मकसूद है इस्लाह मफासिद, रस्तर जो लगाता है वह दुश्मन नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।